Good morning, children. So, today we will discuss our last topic of this chapter, that is the rights and responsibilities. We already done our most important topics of this chapter. First of all, we now come to understand what are rights. If I ask the question, what do you mean by a rights or what are rights? You can easily give your answers that rights which are recognized by the society, it is accepted by the society as a whole for the self-respect and dignity, and it is enforced by the state, it is known as a right. So all claims are not rights. Rights are those only recognized rights are called the recognized claims are called the right. When all the people they think these are the well-being for the people, these are the good for the people, and collectively it should be given to all. Like we also discussed the examples of right to education, right to livelihood, and also the right to my life or your life. So in this we come to know the role of the state in this. So these rights are which are recognized by the society and enforced by the state. These are rights. Then we discuss later about the origination of rights. कि rights कहाँ से आते हैं? Where do rights come from? So some politicians like they believe that these rights are given to human beings by nature, by the grace of God. So that's why basically three rights they talked about, and they also argued that these three rights are the basic payment for the another right. This we discussed, but later we argued that why now the people they more believe in rather than the natural rights, they believe in human rights because our rights are extending. These rights are which are guaranteed by the constitution. With the course of time, new challenges and threats, we demand more security, more rights. That's why now we talk about the healthy environment, security, many more rights we talk about, and today we are enjoying also. That's why today we always just argue with the human rights rather than the natural rights. Later we discuss the role of the legal rights and the state. In this, we also discuss the whenever the rights are there, we directly just it is direction to the state. Whenever we talk about that, the collectively the people think that if we want the overall development, we want that the education is very necessary. So, because of this reason, the state enforce this right and it becomes a right like a right to education. And because of that, more and more public sector, they are also taking interest in establishing private schools, institutions are also. On the other hand, when I talk about my that the on one hand we see that the responsibility is given to the state to enforce some rights. Sometimes we see that the government should refrain some acts also कि जहाँ पर हम कहते हैं कि स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए. When I talk about my life of liberty, that is the right of liberty, वहाँ पर जहाँ भी मेरी लिबर्टी कर्टेल हो रही है तो आई कैन अप्रोच टू द कोर्ट कि मेरी लिबर्टी क्यों कर्टेल हो रही है, इस सिचुएशन में मेरी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए. तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू दैट अश्योर माई सेल्फ कि मेरी जो लिबर्टी है आई शुड इंजॉय, कि मेरी राइट को कोई भी एनक्रॉच नहीं करे. अगर कोई कल्प्रेट है इस चीज के लिए, कोई भी इस चीज का जो भी चीज के लिए अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो उसको पनिश करना भी किसका काम है? स्टेट का. तो वहाँ हमने डिफरेंट लीगल राइट्स और स्टेट का रोल पढ़ा. फिर हमने काइंड्स ऑफ राइट, लास्ट लेक्चर हमने काइंड्स ऑफ राइट्स का पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स. First of all, we talk about the political rights, like the right to contest election, right to participate in the taking the decision of the government, right to contest, right to vote also, free of expressions also, make a association also, that you can raise your voice against the any harsh practices also. So in this way, understand that the number of political rights are given to the people. Later we discuss about the economic rights also, and in this social rights, we also discuss about the social rights. So different kinds of rights we discuss in this today. Whenever rights and responsibility today's topic is rights and responsibility. Okay, one thing.
that whenever we talk about a right, always keep in mind in your that is your responsibility. जब भी हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य हमारे साथ हैं। और दिस इज द ट्रुथ कि क्या जब जब भी हम अपने राइट्स को अगर हम डिमांड करेंगे तो अपने माइंड में पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी माइंड में रखें, तब आप अपने राइट्स की बात करें। ठीक है, कोई भी चीज जो है फ्री नहीं है, आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। राइट्स की जहां हम बात करते हैं, वी वांट दैट द पीपल शुड डू लाइक दैट, व्हेनेवर वी से दैट द ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, वी शुड do the work like according to the people, that what they require, what they desire. Clearly? So in this we are talking about the rights and responsibility of individuals as well as the not only of the, we are talking about this the whole the chapter, the responsibility of these things. हमने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, क्योंकि जहां हम राइट्स की बात करते हैं वहां हमारी ड्यूटीज भी आती है, ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया है कि जहां पर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपके साथ में आपकी फैमिली मेंबर्स जो एल्डर्स हैं वो एक ड्यूटी जरूर साथ में है। ठीक है, तो इन दिस वी कम टू अंडरस्टैंड दैट दीज राइट्स आर they are and responsibility, or we can say duty, responsibility in the sense here duty, they are complementary to each other, they are not aparted to, they are complementary to each other, and it's our duty. Once again I say, always I never say this is our right, it is our duty that we should understand that what people require from us, if we want that the people should do like that, our family members should like that. So in this, first of all, we will understand that the whole the chapter we see that there are some obligations we want to that the state should follow. क्या चाहते हैं हम कि स्टेट का कुछ, स्टेट पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, कि लोगों के भले के लिए, सस्टेन वेलबींग के लिए स्टेट को कुछ ऐसी चीजें लाइक दे शुड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. They should be very attentive, accountable towards the requirement of the people. Okay, it is in one hand. On the other hand, when we talk about our rights, this is our right that we say that the state should be very accountable towards the requirement of the people. On the other hand, what it requires that we should be also very responsible towards the society. When we are living in society, एक हम समाज में रह रहे हैं, उस समाज में रहते हुए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जहां हम बात कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें दूसरों को सिक्योरिटी देनी है। ठीक है, सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपके, सिक्योरिटी इन द सेंस कि भाई आपके घर पे कोई वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, कोई मेड काम कर रही है, उसको आप की जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप जो है कि किसी के लिए थ्रेटन ना बने, कुछ इस तरह के आप जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करे जो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटन हो सके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में जहां हम अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, लाइवलीहुड की बात करते हैं, गवर्नमेंट को बहुत अकाउंटेबल होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी भी ड्यूटीज कुछ बनती है। ठीक है, आज के टाइम में हम क्या बात कर रहे हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्दी एनवायरनमेंट। ओके, बिकॉज ऑलवेज नाउ वी कंसेप्ट इन ऑल सब्जेक्ट व्हाट इज दैट इज सस्टेनेबल, economic sustainable development. In all the subjects, it is commonly one meaning is that if we should reserve the resources, reserve the things for the future generation without harming the environment. When we say that it's the duty of the state that they should formulate the policies for the sustainable development, it is our duty that we should also conserve or preserve the environment. Like we say that we are indiscriminately cutting the forest also, like the many malpractices that these are done by the human being for their greed, not need, for their greed. So that's why we see number of problems that today we are facing and could be faced by the future generation because of the human beings. They are now not responsible towards the environment. They are just using that. They say that we are human beings, that's right, it's our right that we can use the resources which are called the free gifts of nature. It is not true. So in this we are talking about the materialistic thing. If we live in a society, because it's our subject, we should understand that the deep meaning of it, what is the responsibility of a individual in living in a society. कि एक समाज में रहते हुए हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं वो हमें समझना।
कि समाज के अंदर जो चीजें एक्सेप्टेड है हमें वही करना है, ठीक है। समझ रहे हैं कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में यही बताया था कि ऐसा नहीं कि आप स्कूल अपने अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई गैदरिंग में जा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी गैदरिंग में जा रहे हैं, यू हैव टू जस्ट कीप द बैलेंस ऑफ योर लाइफ। बैलेंसिंग मीन्स कि आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चीजें हमें एक्सेप्टेबल और क्या है, क्या समाज में एक्सेप्टेड है और क्या नहीं। तो जहां हम समाज में अपनी राइट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी ड्यूटी की भी बात है। तो दोनों चीजों को अगर हम साथ में लेकर चलेंगे तभी एक बैलेंस है। तो समाज के अंदर अगर हमें बैलेंस लाइफ जीना है, एक यूँ कहा जाए एक ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट में अगर हमें बैलेंसिंग रखनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑलवेज ड्यूटीज एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड। इसे जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को जो है बहुत सेफ रखें, हेल्दी रखें। हमें जो है अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बैलेंसिंग होकर चलना, ना कि उनको केवल अपनी ग्रीड के लिए, नीड के लिए नहीं, ग्रीड के लिए इंडस्ट्री में यूज करना। तो फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, ना फ्यूचर के लिए एनवायरमेंट रहेगा, ना फ्यूचर के लिए ढंग से सोसाइटी रहेगी। अगर हम ही अपने वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को हमने जो है नहीं फॉलो किया, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या बताएं कि हमने सोसाइटी से क्या सीखा, हमने अपनी फैमिली, देखिए ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जो एथिक्स होते हैं, दीज आर गिवन बाय द पेरेंट्स, एल्डर्स, देन एल्डर्स, जनरेशन टू जनरेशन। if they are if start to ignore all these ethics, अगर आज जो जनरेशन है, हमारी जैसी जनरेशन, आज जैसी जनरेशन अगर एक मॉरल जो वैल्यूज, जो समाज की कुछ मॉरल वैल्यूज है, आजकल आप सुनने में आपको आएगा, क्योंकि हमारे के ऊपर क्या है, वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो वेस्टर्न कल्चर के इम्पैक्ट की वजह से क्या धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज है वो कम होती जा रही है। हम नहीं उस चीज को समझ रहे कि ये हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति, दिस इज द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया, that's why it is the unique in the world. But in spite of that, we should be proud of all these. We are just degraded. हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे, ठीक है। आज जो आप देख रहे हैं, आज की जनरेशन, यंगर जनरेशन जो है, मोस्टली दे आर बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों का, ठीक है। जल्दी से कहते हैं ना, जो ऐसी जो पाथ एक्सप्रे करने वाली चीजें होती है वो जल्दी हम अडॉप्ट करते हैं, बजाय इसके कि जहाँ पर हम लोगों का ज्यादा फोकस होना चाहिए, जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, जिन चीजों को हमें समझना है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो व्हाट विल यू टीच टू योर नेक्स्ट जनरेशन, क्या सिखाएंगे आप जब खुद नहीं सीखे, तो क्या सिखाएं? So whose responsibility is this? We are just talking about our rights, that we have the right to freely express our ideas, we have the right to wear anything, we can go anywhere, anytime, whatever you want to like. Okay, this is your personal life. But you always associate the things with your morality. आपको अपनी नैतिकता के साथ जुड़कर ही काम करना होगा और करना चाहिए। That's why you can, because आज जो चीज आप देख रहे हैं, the thinking of perspective, it can be changed with the course of time. What you today like it may be possible in 2, 3, 4 years after, or 10 years after, you will dislike all the things what you today like. जहां आपको आज ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है और इसी को अडॉप्ट करना चाहिए, 10 साल बाद आप ये बात कहेंगे कि ये तो गलत है। हमें तो, क्योंकि दिस इज द ट्रुथ कि इंसान अपनी ओरिजिनलिटी जो है उसकी कभी खत्म नहीं होगी, वो घूम के वापस उसी ओरिजिनलिटी पे आता है। So that's why it is our duty that we should respect others' rights, we should respect other ideas also, we should respect our environment for the sustainable development of the next generation. Now, when I say that this is my right, it's my duty that I should respect other rights also. This is true. When I say that this is my right, what is your right? I am just claiming on all the things on the which are available in our country. That way I say that some rights are which are enshrined in the constitution, it is given to all the people automatically by the constitution. But whenever I talk about another rights also, that this is my right to go anywhere,
to wear anything, to listen loudspeaker in a very high voice. I can listen music, whatever I like to do. So on the other hand, I should also respect others also. How? That if the people who are wearing anything or going anywhere, what are they talking anywhere? This is their private life. I should not interfere in their life. नहीं करना चाहिए. But what is here beauty is that try to understand the concept here. आप अपनी जिंदगी प्राइवेट लाइफ कैसे जी रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है. मेरी प्राइवेट लाइफ कैसे है आपको कोई मतलब नहीं, होना भी नहीं चाहिए. बट जब ये चीज हमारे ऊपर है ना, जब ये चीज हमारे ऊपर किसी भी तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, तब हमें महसूस होता है कि ये हमारी ड्यूटी थी, हमें भी ऐसा करना चाहिए था, तब अगला व्यक्ति करेगा. जब हम अपने राइट की बात करते हैं कि हमारे राइट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो अगले की राइट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज के लिए. एग्जाम्पल से हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मेरा प्राइवेट लाइफ के लिए कोई भी जो मेरा राइट है, आई कैन यूज दैट, आई कैन एंजॉय दैट. मैंने कहा कि मैं अपने घर में कितना भी लाउड स्पीकर म्यूजिक बजाऊं, कितने भी उस चीज से रहूं, कैसे भी रहूं. ठीक है, एक अपार्टमेंट है जिसमें एक फैमिली ऐसे है, हो सकता है फैमिली ना भी हो, कोई यंग पीपल रह रहे हो, 2-3 लोग रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जिनपे पूरा वेस्टर्न कल्चर का पूरा उनसे इफेक्ट होगा. वो ये कहेंगे हमारी ये लाइफ है, हम कैसे भी अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, अब सेकेंड थिंग यही चीज जहाँ पर आप लाउडर म्यूजिक में सारी चीजें जो है कर रहे हैं, बहुत अपार्टमेंट के नेबर्स जो हैं उनको आप परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, नहीं मान रहे हैं. ऑन द अदर हैंड कि यही चीज अगर आसपास के लोग करेंगे, तब आपके साथ कैसा होगा कि इन टाइम ऑफ कंडीशन के सबके सारे दिन एक जैसे नहीं होते. हो सकता है कि कुछ आप क्राइसिस फेस कर रहे हो उस समय और आपके नेबर भी आपकी तरह बिहेव करने लगे, तब आपके साथ क्या होगा. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. So that's why we should always remember that we should also care of our neighbors and our surroundings also. जैसे कि हमने इसको एनवायरमेंट से ऐड किया था कि राइटिंग ड्यूटी का, कि हमने एनवायरमेंट से ऐड किया प्लस सोसाइटी, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर हमने सोसाइटी में ये देखा कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी भी केयर करनी होती है. ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ है, वी नो दिस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी शुड बी केयरफुल टू अदर्स ऑल्सो. वी शुड बी हैव टू बी केयर आवर नेबर्स ऑल्सो, क्योंकि सबके साथ जो है कुछ भी क्राइसिस, समूची लाइफ किसी की नहीं होती है, एक जैसी लाइफ किसी की नहीं होती है. उसी तरह से हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अपने आसपास ही इतना ज्यादा गार्बेज और इस तरह से अपनी सोसाइटी को ही साफ नहीं रखेंगे. दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने तो ये तो कह दिया कि भाई ठीक है हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, लेकिन बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी. तो इन दिस दैट यू आर ऑल्सो अवॉइडिंग योर ड्यूटी. तो हाउ कैन यू क्लेम योर राइट? कैसे कहेंगे राइट है आपका कि आपको जो है आपकी भी प्रॉपर उसकी सराउंडिंग्स की क्लीनिनेस होनी चाहिए? नहीं होगी, बिकॉज आप नहीं रखते उस चीज को, तो क्यों कोई आपकी बार बार ये चीजें करेगा. तो इन दिस वी कम टू नो कि जहां पर हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें दूसरे की राइट्स को भी केयर करनी होगी. इट्स आवर ड्यूटी. So in this we come understand that कि ये जो that to care the other rights also, this principle this it curtails our rights. यहाँ पर हमारी राइट का कर्टेल कैसे हुआ? क्योंकि हमें दूसरों की राइट जो प्रिंसिपल्स है, दूसरों की राइट को केयर करना, वहां पर हमारा राइट कर्टेल होता है, और ये होना भी चाहिए. राइट, बिकॉज वी ऑल टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर हम आंख बंद करके अपने राइट्स की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कैओस हो जाएगा पूरी कंट्री में. देश के अंदर हर कोई क्या होगा, सिर्फ अपनी राइट्स की बात करेगा, एनफोर्स करने की बात करेगा, तो समझ लीजिए वो देश कैसा होगा. कंट्री की तो बाद में बात करेंगे, एक फैमिली की बात कर लेते हैं. मदर कह दे कि मॉर्निंग टू इवनिंग जो दोनों टाइम का मील मेरे को क्यों बनाना है, वो अपने जो है बच्चे कहेंगे कि हमें टाइमली खाना मिलना चाहिए. इट्स आवर राइट. मदर की ड्यूटी है ये कि वो 2 टाइम्स उनको मील जो है 3 टाइम्स जो है वो बनाना मदर की ड्यूटी है. ड्यूटी हमने असाइन कर दी है. इट इज असाइंड बाय द सोसाइटी, नॉट बाय द नेचर. तो जहां पर हमने ड्यूटीज असाइन कर दी है, तो उस कंडीशन में अगर मदर भी ये कहे कि इट्स नॉट माई ड्यूटी, मैनेज योरसेल्फ, तो यू कैन जस्ट, फादर कहे कि अर्निंग करना मेरा ही काम थोड़ी ना, इट्स नॉट माई ड्यूटी, मैनेज योरसेल्फ. चिल्ड्रन के लिए हमें अपने पेरेंट्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं है.
तो उस फैमिली का एक आप लोग इमेजिन कर सकते हो उस फैमिली की क्या कंडीशन है। क्या वो अपने राइट्स और ड्यूटीज में जहां पर बैलेंसिंग, जहां पर लाइफ में बैलेंस नहीं, वहीं पर chaos आता है, वहीं पर प्रॉब्लम आता है। हम एक साइकिल चलाते हैं तो 2 व्हील के ऊपर साइकिल है, ठीक है, और उसको अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, गिरेंगे। इसी तरह से हमारा जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो हमें एक लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। That's why I told you that we should respect other rights also. Not only always just claiming our rights, be also very careful about duties also answerable towards the family, towards the society. Third, balance right when they come in conflict. Try to understand this. कि बैलेंसिंग क्या है, बैलेंसिंग कब करनी है। देखिए, आपका राइट है द फ्री एक्सप्रेशन, दैट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्री, बट conflicting कहाँ है, you should not be curtail the other rights. How? The person who just having some private life, you cannot disclose it publicly. Means you have the expression, you have the right to express anything, but it is wrong when you are just curtailing the private life of anybody and you are disclosing them publicly. This is called that the rights conflicting. How we can balance? How we can balance? Try to understand this. एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। मान लीजिए कि एक विक्टिम है, ठीक है, एक विक्टिम है, वो उसको कोर्ट में लाया गया है। वहां पर कोर्ट में जो लाया गया विक्टिम है तो उसके कुछ राइट्स हैं, ठीक है। उसके क्या राइट्स हैं? उसके राइट्स ये हैं कि पब्लिकली कोई भी ऐसा अक्यूज ना लगाया जाए जो उसको उसकी राइट को कर्टेल करता हो। विटनेसेस को बुलाया जाता है, जो विटनेसेस से जो है उनके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखना है, that witnesses has the right to express whatever he or she saw that time, क्या देखा था उसने, clearly सच बोलना है। but on the other hand, what are the we can say that it should not be publicly announced there, that it is also the curtail of the right of the public private life of the person। मीन्स कि एक चीज तो यह है कि आपने उस समय इंसिडेंट हुआ वहां क्या देखा आपने बोला। ऑन द अदर हैंड, उस विक्टिम की जो भी प्राइवेट लाइफ है आप उसको पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आपसे पूछा गया आपको उतना ही बताना है। इसी तरह से कोई चिल्ड्रन अगर वल्नरेबल विटनेसेस बोलते हैं उन्हें, वल्नरेबल विटनेसेस जैसे हम कहते हैं चिल्ड्रन, एक बच्चे को अगर आप कोर्ट में लाके इस तरह के सवाल पूछेंगे तो वो क्या है, उसकी राइट्स कर्टेल होंगे कि वो जवाब नहीं दे पाएगा, इस तरह से पूछेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल at the time of expression, our views expression, that it should not curtail the private life of the person also। यहाँ पर बैलेंसिंग जो राइट है, बैलेंस राइट when they come in conflict, तो वहां पर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जहां पर conflicting कहाँ है, एक पर्सन की प्राइवेट लाइफ है और एक पर्सन का एक्सप्रेशन। आप डेली न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे कई ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारी ड्यूटी क्या बन रही है, ड्यूटी ये बन रही है कि आप किसी भी प्राइवेट लाइफ, किसी भी पर्सन की प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे, पब्लिकली आप उसको जो है पब्लिश नहीं करेंगे। और सेकेंड थिंग, जहाँ यही चीज आप सोच के देखें, ऑन द अदर हैंड इफ इट हैपेंस टू यू तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना है। अगर हम राइट की बात कर रहे हैं तो ड्यूटी का यहाँ पर ये रोल है, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। नाउ द फोर्थ इज सम आर्गुमेंट इज गिवन इन दिस। व्हाट आर दीज आर्गुमेंट्स? We see that sometimes the state curtails the liberty of the citizens on the name of the security of the nation. I am not agree of all these aspects. Personally, I just want to share my views with you that I don't accept all these things, because nowadays you see that the state is more accountable towards the people rather than
that they are just become an authoritarian government, or they become the anarchy government and try to impose some rules and regulations on the people. No, we don't see. But in spite of that, here the another aspect is that because we are citizens, so we must be vigilant. Why we must be vigilant? You see, two aspects I am just clearing you in front of you, that what are these aspects. On one aspect, I believe that now we all people, citizens, are very vigilant. But on the other hand, what we see in the country, that there are the section of the people, they don't know their rights about their rights, and they are suppressing by the authority, suppressing by the institution. At that condition, it's very necessary that we should be very vigilant. It's talking about all that. Okay. So two aspects are there. I discussed with you. One aspect which is given in your content, I discuss with you now, that according to that, the name of the security, it is true that the security is very necessary. It is the priority of ours, not only of the state, but it's all the people, because security means the security of the citizen. And at that time, you know that what required, sometimes the state curtail the liberty of the person. But on the other hand, they ask the question, who decides? Who decides at what point that the liberty should be curtailed? Okay. And one more reason is there, who decide what incident if it happened to a country, कि किसी भी देश के अंदर कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लिबर्टी को तब कर्टेल किया जाना चाहिए. तो कुछ इंस्टांसेस पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक हो जाए, ठीक है, आपकी उस कंडीशन में, या आपको जो है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द डिटेन, है ना, डिटेंशन, जो डिटेन करके रखते हैं, नजरबंद करके रखते हैं, आपके ऊपर सस्पिशन है कि आप किसी मामले में इंडल्ज है, इलीगल मामले में इंडल्ज है, तो भी आपकी लिबर्टी को कर्टेल किया जाता है. या कोई और रीजन भी हो सकता है जिसमें ये कहा जाए कि आपकी फोन कॉल्स हैं और आपकी जितनी भी उस पर जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखी जाती है, ठीक है, या आपको फिजिकली टॉर्चर करके कुछ आपसे जो है सच्चाई निकलवाने के लिए जो चीजें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्या ये सब चीजें सही है? ये आपकी लिबर्टी को कर्टेल करना है, आपकी लिबर्टी को क्या करना है, आपके राइट्स को एनक्रोचमेंट है. क्या गवर्नमेंट ये सब कुछ कर सकती है ऑन द नेम ऑफ द नेशन सिक्योरिटी? आई थिंक दीज टू एस्पेक्ट्स आर डिफरेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशन सिक्योरिटी, इट इज, आई थिंक, ओवरऑल जितने भी सिटीजन है उनसे सेम एक जैसी चीज लागू होती है. क्या होती है? जैसे हमने कह दिया कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जो है इधर उधर नहीं जाना है, वो कुछ सर्टेन. अब जैसे हमने देखा आर्टिकल 144 धारा 144 लगाई थी, तो उसमें ये था कि सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये चीजें जो है ओपन रहेगी. अभी हमने सारी सिचुएशन देख ली थी, ठीक है. दो बातें इसलिए समझा रही हूँ कि अपने माइंड में सही चीज रखना. ये जो चीजें हमारी बुक में दी है, हमें ये समझना है कि आर्ग्यूमेंट इज वेरी नेसेसरी, रैशनैलिटी इज वेरी नेसेसरी. While we should accept all the things which are written here, सारी चीजें जो लिखी हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है, हमें समझना है कि क्यों करना और क्यों नहीं करना, ठीक है. हमें अब अगर ये चीजें होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है. सेकंड थिंग, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अगर कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, अब हमारा इंडिविजुअल के ऊपर आता है, तो उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है. और हमने अभी देखा भी था कि डिटेन किया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, आपने देखा ही था कि डिटेनिंग चल रही थी, और ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दीज आर इन लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा था कि एग्जाम्पल पढ़ा था, जहां पर हमने फ्रीडम वाले में एग्जाम्पल पढ़ा था, एक पर्सन को 60 ईयर्स तक डिटेन करके रखा और उस पर केस नहीं चलाया, तो वो यंग एज में गया और बिल्कुल ओल्ड एज में बाहर आया. ऐसा थोड़ी ना होता. तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चीजें कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कि इनकी लिमिटेशन है. यहाँ पर हमें विजिलेंट रहने के लिए क्यों कहा गया है? विजिलेंट रहने के लिए इसीलिए कहा गया है कि वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट आवर राइट्स, और कहाँ पर नेसेसरी है राइट्स को, लिबर्टी को कर्टेल करना, वहां पर हो सकता है. अदरवाइज अगर ये चीज होता है तो हमें अब क्या करना है? आवाज उठाना है, गलत चीज के लिए आवाज उठानी है. तो दोनों तरफ आ गया, एक तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई और एक तरफ राइट भी आ गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आ गई कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर हमारे राइट्स को कर्टेल किया जाता है, राइट्स हमसे ले लिए जाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
we should be always cooperate with our nation. तो हमें सहयोग करना है. On the other hand, right क्या है कि अनलिमिटेड जब चीजें होती हैं तो हमें उस चीज को रिवोल्ट करना है, आवाज उठाना है. So in this we come to know that the both aspects are there. They have to be understand what should be our duty and our right and why we should remain vigilant here. Now the conclusion of this chapter is overall we can say. So number of questions that is asked and discussed in this chapter according to that rights and the role of the state. On the one hand we talk about the right, on the other hand we talk about the role of the state. Why should we must be very vigilant in this? कि हमें vigilant होके क्या करना है? We should be very aware of our rights as well as our duties. Because it's very necessary to just if we believe in democracy, because India is a democratic country, here the two aspects that is rights and duties they always go hand in hand, and the smooth functioning of the country is very necessary. Smooth functioning of the democracy is very necessary. The people should be very vigilant. Vigilant होना भी जरूरी है. उसका रीजन क्या है कि हमने बिलीव तो कर लिया. अगर आप क्लास 9 का थोड़ा सा बैक में जाए तो आपको ध्यान होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. उसमें दोबारा यही बात आती है कि विजिलेंट रहना क्यों जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज आ गई कि हमारी कंट्री क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. बट ऑन द अदर हैंड वी सी क्या देखा कि गवर्नमेंट जो प्रैक्टिस में जो गवर्नमेंट है, जो प्रैक्टिकल गवर्नमेंट, जो पॉलिसी प्रोग्राम दैट इज ऑथोरियन. और समटाइम वी सी कि वो कुछ सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को ही जो है फेवर कर रही है, जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ पीपल है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही. तो ऐसी कंडीशन में हमें विजिलेंट होना जरूरी है, हमें अपने राइट्स का ध्यान रखना जरूरी है. बिकॉज वी सी मेनी एग्जाम्पल्स आर इन रूरल एरियाज ऑल्सो, जहाँ पर ट्राइबल लोगों के बारे में हमने सुना, ठीक है, जहाँ पर दलित पीपल है उनके बारे में हमने देखा कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के थ्रू उन्हें मार दिया जाता है. तो ऐसी कई चीजें ऐसी हो रही हैं और बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन यहाँ पर हमें विजिलेंट रहने के लिए कहा गया. बट ऑन द अदर हैंड वी सी ओवरऑल व्हाट आर द ड्यूटीज आर आर कि हमारी ड्यूटी क्या है. इफ वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड बी very attentive and accountable towards the people. On the other hand, we should be very responsible towards the society and the state also, which are the principles which are formulated by the constitution as well as by the government in the course of time, because of the reasons are there for the smooth functioning of the nation, for the smooth functioning of the society. तो आज ये हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है राइट्स का, जहां पर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे किए हैं.